Hello students, I am Dr. Tayyib Sultan, Department of Oral Surgery. Now I'll continue with the portion in oral surgery. Before that, Mamta ma'am took a lot of portion, maximum portion has been covered. I'll deal with some remaining topic. I hope all of you are in good health and staying home. Take care of yourself and your family members. So I'm starting now with topic that is known as neuropathies. Like we are having different type of disease in oral cavity and its associated region, like tumors, cyst, and now we are dealing with the specific disease of nerves, and that is a very important topic which is now we will cover. So we are starting with trigeminal neuralgia. Okay, so all of you know that trigeminal nerve is the most important nerve as far as dentistry and oral surgery is concerned, because it's having three branches. All of you know, all of you are aware of that, all of you read nicely in first year. First one is ophthalmic, then maxillary and mandibular nerve. So ophthalmic is supply in the orbit region, which is not very important for us, but especially the maxillary nerve and the mandibular nerve, which is the nerve which actually supply the upper jaw regions and lower jaw, that is mandible, maxilla and mandible. That's what their name is actually. So these two nerves is very important for us, and we should know each and everything about these two nerves. So anything, I'm sure that all of you had read about their branches, their cores and everything. You all have read. So you know all that about branches. So I'm not going in detail about these branches. I'm just going with the pathology of this particular branch, that is neuralgia. So all you know, name means trigeminal neuralgia. Okay, means neuralgia means neuron, algia, gia means pain, like myalgia. Myo means muscles, gia means pain. Okay, so myalgia means muscle pain, neuralgia means neurological pain या nerve pain where trigeminal branch. So it is a pain of the nervous pain of the fifth branch, that is trigeminal nerve. So no name is trigeminal neuralgia. Okay, I hope all of you clear with that. One thing which before starting I'll tell you, अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ भी पढ़ी है, इससे पहले आपने पढ़ी होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा सिस्ट, ट्यूमर, डेंटल कैरीज, या आपने फेशियल स्पेस इन्फेक्शंस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोरेडोनेक्रोसिस, सेलुलर ग्लैंड ट्यूमर्स, व्हाटएवर इट इज यू हैव रेड बाय नाउ. इसमें आपकी जो डायग्नोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट होते थे. एक तो पेशेंट आपको क्लिनिकल साइन आके बताता था, सिम्टम बताता था, उसके बाद आप उसकी क्या करते थे, एक एक्सरेज कराते थे, उसको क्लिनिकली एग्जामिन करके देखते थे. जैसे कोई पेशेंट आया, उसको कुछ पेन है, ट्यूमर की प्रॉब्लम है, तो पेशेंट पेन बताएगा, आप क्लिनिकली देखोगे तो आपको स्वेलिंग दिखेगी, आपको कॉर्टिकल एक्सपेंशन दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी. लेकिन हमारे न्यूरोलजिया की प्रॉब्लम्स में जो न्यूरोपैथिक डिजीज़ हैं सारे, चाहे अभी आप ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की बात करें या इसके बाद बेल्स पाल्सी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज फेशियल पाल्सी, इसके अलावा बहुत सारी नर्व इंजुरीज़ के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, सारी टॉपिक्स में एक बहुत डिफरेंट चीज़ है. ट्यूमर वगैरह केसेस में क्या होता है, पेशेंट्स एक डायग्नोसिस बनाएगा, पेशेंट आपको अपनी एक प्रॉब्लम बताएगा, उसके बाद आप जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको बहुत सारी फाइंडिंग्स दिखेंगी. जैसे एक ट्यूमर के केस में आपको स्वेलिंग दिखेगी, उससे एसोसिएटेड टीथ जो रहेंगे उसमें मोबिलिटी दिखेगी. आप एक्सरे कराओगे तो वहाँ पे आपको एक रेडियोलेसेंसी दिखेगी. तो आपकी डायग्नोसिस करना कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है. इट्स नॉट दैट इजी, बट डेफिनेटली इट इजी कंपेयर टू दैट. न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होती है, स्पेशली लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, पेशेंट प्रॉब्लम बताएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं.
एक्सेप्ट कुछ फ्यू कंडीशन लाइक फेशियल पाल्सी, लाइक नर्व इंजरीज की क्लासिफिकेशन आपको हम लोग पढ़ाएंगे, या अगर आप न्यूरालजिया की भी प्रॉब्लम डील करिए, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की, आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको वहाँ पे कुछ भी कोई भी कुछ भी डायग्नोसिस करने के लिए टोटली यू हैव टू रिलाई ऑन द पेशेंट्स नरेशन ऑफ द काइंड ऑफ डिजीज, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज हैविंग। आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है। आपको ये अगर तो पहले तो सिर्फ पेशेंट की स्टेटल जो ओरली वो बताएगा उसी पर रिलाई करना है, आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट सी द नर्व एक्चुअली इन लाइक आप ऐसे जनरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके नर्व नहीं देख सकती हैं, आपको कुछ दिखेगा नहीं, और आप एक्सरेज वगैरह कराएंगे उसमें भी कोई फाइंडिंग नहीं होगी। बहुत हाई इंड इमेजिंग होती है जिसमें हम लोग एमआर वगैरह करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत फाइंडिंग आती है, बट जनरली वी डोंट गो टिल दैट डिस्टेंट बीइंग ए ओरल एंड डेंटल सर्जन एक्चुअली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायग्नोसिस न्यूरालजिया की होगी वो प्योरली क्लिनिकल होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ द clinical feature the problem patient is sharing with you. So it is a very paramount important in these neurological conditions that you have to be very careful with the history of the patient, because the history of the patients, the problem he narrate is the only tool to diagnose the condition. Okay, so please make this sure ki you should thorough with the clinical conditions and how to diagnose it just by clinical history, because in examinations when you will examine with your eyes you will not find anything. When you go for CT scan and other when you go for some investigations you will not find much. Okay, so that is a background which I told you. Now we start with this particular condition which we are going to deal. So the the neurological disturbance of oral and peripheral region, पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग और पढ़ेंगे, मैं 1 by 1 लेक्चर्स में डालता रहूँगा नेक्स्ट हर वीक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया पढ़ते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया डिफिनीशन, ग्रीक algos means pain, तो neuralgia is a pain in the distribution of nerve or nerve is in, ठीक है। इसके अलावा न्यूरालजिया आप किसी भी तरह का हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, इंटरकॉस्टल न्यूरालजिया एंड ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरालजिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, और यही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 95% न्यूरालजिया जो हम एज ए डेंटल ओरल सर्जन हम लोग डील करते हैं वो होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ विथ और विद दैट। और आप जब प्रैक्टिस भी अपनी स्टार्ट करेंगे तो इस तरह के पेशेंट बहुत मिलेंगे आपको, तो कैसे मैनेज करना ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज फार एज क्लिनिकल पॉइंट ऑफ कंसर्न, फॉर एग्जाम्स, एवरीथिंग। एंड ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन जैसे हम लोग डील कर रहे हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया से, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन है न्यूरालजिया की। इट इज़ नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरालजिया। व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की जो न्यूरालजिया है, ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया, ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरालजिया, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया एंड इंटरकोस्टल न्यूरालजिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया ही इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत हम लोग ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरालजिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो गया, उसके बाद आ गया ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरालजिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेन क्या होगा, और पोस्ट हार्पेटिक न्यूरालजिया। पोस्ट हार्पेटिक न्यूरालजिया भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, और इसकी डिटेलिंग हम लोग करेंगे। व्हाट इज़ द पोस्ट हार्पेटिक न्यूरालजिया? तो सबसे पहले आप आ जाइए कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकता है। तो एक्चुअली अगर आप कॉजेज़ में चाहिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, बट एक्चुअली जो मेन है वो इडियोपैथिक है। बहुत एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं मालूम कि क्यों होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो जैसे कुछ पता चलता नहीं है जनरली कि यार क्यों हो गया ये डिजीज़, तो उस कंडीशन को हम लोग इडियोपैथिक कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक जनरल कुछ फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से हम कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में, देखो
मेन काज इज डैमेज टू नर्व लीडिंग टू डीमाइलिनेशन। पता ही होगा कि नर्व के चारों तरफ एक शीत होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट, टेल मी, दैट इज व्हाट इज दैट, माइलिन शीथ, दैट इज नोन एज अ माइलिन शीथ। तो डीमाइलिनेशन होता है। तो मेन काज इज डैमेज टू द नर्व लीडिंग टू डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व लीडिंग टू स्टैबिंग सीवियर शॉक लाइक पेन ऑफ न्यूरल्जिया। पेन कैसा होगा हम अभी आपको डील करेंगे। तो बेसिक काम क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे होती है, किसी वजह से नर्व की डीमाइलिनेशन हो जाता है। किस वजह से होता है बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली, डीमाइलिनेशन हो जाता है, नर्व शीथ हट जाती है। अब वो कैसे हो सकता है, वो नर्व इंजरी से भी, नर्व डैमेज की वजह से हो सकता है, प्रेशर की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, अब जो जो चीज़ें डैमेज काज कर सकती हैं, ओल्ड एज में हो सकता है, कोई इन्फेक्शन। व्हाट इज अ पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया। आपने बहुत सारे वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़े होंगे, तो आपने हर्पीस के बारे में पढ़ा होगा। इट इज व्हाट इज दैट, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के थ्रू होता है, और इससे क्या होता है, मल्टीपल वायरसेस जो होते हैं, मल्टीपल अल्सर्स जो है ओरल कैविटी में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे खास बात क्या होती है कि ये जो न्यूरल्जिया होगा, अगर आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि पेन तो जो न्यूरल्जिया का होगा ही, साथ में हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट हिस्ट्री ऑफ फीवर बताएगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होती है तो फीवर होता है, आपको मालूम ही है। वायरल इन्फेक्शन में जैसा अभी कोरोना फैला हुआ, तो क्या है, कोविड-19 इन्फेक्शन इज कॉजिंग फीवर। तो कोई भी वायरल, किसी भी टाइप का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में होगा तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, दैट इज फीवर एक्चुअली। तो फीवर तो हो नहीं होना है, तो फीवर होगा। और उसके बाद क्या होती है कि अल्सर्स ओरल कैविटी में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है इसमें, अल्सर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ओरल कैविटी में भी हो सकते हैं, फेस में भी हो सकते हैं, कि ये स्ट्रिक्टली यूनिलेटरल होते हैं, क्योंकि नर्व के अलॉन्ग होते हैं तो यूनिलेटरल होते हैं, दूसरे साइड में नहीं होंगे। तो पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया जनरली जो होता है वो कई बार उसके बाद होता है, किसके बाद होता है, फीवर की हिस्ट्री होता है, यानी वायरल इन्फेक्शन के बाद। सो दैट इज नोन एज पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया। तो फिर अल्सर सही होने के बाद पेशेंट आएगा और बताएगा कि डॉक्टर साहब हमको फीवर हुआ, उसके बाद से हमको दर्द हुआ, तो आपको अलार्म हो जाएगा कि ये न्यूरल्जिया तो है, लेकिन इज ए पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया। इट इज टाइप ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, बट इट इज अ पोस्ट हार्पेटिक, यानी हर्पीज इन्फेक्शन वायर बॉडी में हुआ, तो पेशेंट हिस्ट्री देगा कि मुझे एक बार जल्दी से क्या हुआ, बुखार हुआ, बुखार होने के बाद मुंह में छाले वाले पड़े, और उसके बाद से कुछ 1-2 हफ्ते बाद से मुझे ये दर्द शुरू हो गया। तो आप फौरन समझोगे कि पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। उसके बाद आपने पढ़ा ही होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक बहुत डिबिलिटिंग कंडीशन होती है कि आदमी की पूरी बॉडी में स्क्लेरोसिस हो जाती है, मूवमेंट्स वगैरह नहीं हो पाता। ठीक है ना। प्रेशर ऑन नर्व्स एंड डायबिटीज़ आप जानते हैं कि डायबिटीज़ हमेशा क्या काज करता है, बहुत सारे इसके होते हैं, लेकिन जो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, डायबिटिक्स, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। न्यूरोपीस नर्व डैमेज, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो 3 हो गया, ओल्ड एज इन्फेक्शन, 5 ओल्ड एज इन्फेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रेशर ऑन नर्व्स एंड डायबिटीज। ओके, सो ये होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका और नाम भी है टिक डोलोरेक्स ट्राइफेशियल न्यूरल्जिया। ट्राइफेशियल इसलिए बोलते हैं कि 3 ब्रांचेस में होता है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, सो दैट इज नोन एज ट्राइफेशियल न्यूरल्जिया। फादर-गिल्स न्यूरल्जिया, तो ये बेसिकली क्या है कि ये पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट थे फादर-गिल, इन्होंने इस पर्टिकुलर डिजीज को दिया था, तो इस वजह से इसको फादर-गिल्स न्यूरल्जिया भी कहते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, फादर-गिल्स डिजीज, दिस एंड दैट थिंग, फादर-गिल्स न्यूरल्जिया। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, आप एमडीएस की जब प्रिपरेशन करेंगे तो एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। सो नेक्स्ट, तो ये आपने ब्रांच देखी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की, ट्राइजेमिनल नर्व की, ऑप्थेल्मिक, मिडिल एंड लोअर। पेन कहाँ पे ज़्यादा आपको दिख रहा है, मिडिल में मेनली पेन होता है, बट ये जो डायग्राम है इसमें ये पेन सिर्फ मिडिल में दिखा रहे हैं, यानी मैक्सिलरी में, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। पेन मैंडिबल में भी होता है, मैक्सिला में होता है। इस पर्टिकुलर एक्सरे में इस पर्टिकुलर पिक्चर में ये दिखा रहे हैं कि पेन हमको मैंडिबल में मैक्सिला में हो रहा, बट मैक्सिला में भी पेन होता है और मैंडिबल में भी पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की वजह से। सो ऑप्थेल्मिक में जनरली, मतलब ऑप्थेल्मिक ब्रांचेस में जनरली कम रहता है। तो मोस्ट कॉमन इज मिडिल और सेकेंड ब्रांच दैट इज मैक्सिलरी नर्व, एंड देन आफ्टर दैट लोअर और थर्ड ब्रांच दैट इज मैंडिबुलर। फर्स्ट ब्रांच यानी ऑप्थेल्मिक ब्रांच में उतने चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आई होप इट इज क्लियर प्लीज। ओके,
अब इसमें देखिए इसकी डिफिनीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में वाइवा क्वेश्चंस में इसकी डिफिनीशंस लोग बहुत पूछते हैं, तो आपको इसको मगअप करना पड़ेगा। जैसे एक्सोडेंसिया की डिफिनीशन पूरी जाती है ना, व्हाट इज दैट। एक्सोडेंसिया की डिफिनीशन आपको पता ही होगा, एवरीबडी नोज आई थिंक, ठीक है ना। सो इट इज डिफाइंड एज अ सडन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेन ऐसे नहीं होगा कि सडनली होगा, यूजुअली यूनिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एक बात समझने की कोशिश करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कभी भी जो नर्व की डिजीज़ होगी, चाहे नर्व इंजरी हो गई, चाहे आपकी फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी हो गया, या ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हो गया, या भी हमने पोस्ट हेपेटिक न्यूराल्जिया पढ़ा, जितनी भी नर्व की डिजीज़ होती हैं जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस हमेशा यूनिलेटरल होती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जनरली जो नर्व्स होती हैं वो पेयर में होती हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, है कि नहीं। तो अब वो एक ब्रांच को इफेक्टेड होती है, तो वो ब्रांच की जो कोर्स होता है, जहाँ जहाँ वो सप्लाई करती है वो पर्टिकुलर ब्रांच, उस एरिया में जो है आपका जो है पेन होता है। समझ में आई बात। सो यू गॉट माई पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर। सो वन ऑफ द वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ, not only for this particular trigeminal neuralgia, in all type of nervous disorders, most of the time you will find it is unilateral. If any problem, patient will tell the pain on one side only. It's not tell bilateral or diffuse type. It is always unilateral, and reason is that in most of the condition will have a two pair of nerve, but one side of nerve will generally involve, so pain will be there in that particular area only. I hope it is clear now. Okay? So it is defined as a sudden. Sudden is a very important point. You understand this? Sudden, usually unilateral, severe, brief, stabbing, lancinating, recurring pain in the distribution of one or more branches of the fifth cranial nerve. अब हम एक एक करके देखेंगे इसकी डिफिनीशन में। सडन का मतलब है जो पेन आएगा न्यूराल्जिया का एक बैग, मतलब पेशेंट नॉर्मल होगा, झन्ने से पेन हो जाएगा उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसी कंडीशन में और होती ही नहीं है, ये इस कंडीशन में ही होती है। एक आध कंडीशन और हो सकती है, बट जनरली जो हम लोग नॉर्मल कंडीशन पढ़ते हैं, जैसे दांत का पेन होता है, थोड़ा थोड़ा इनिशियली स्टार्ट होगा, फिर तेज दर्द होगा और दर्द खत्म भी फौरन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सडन होता है, यानी पेशेंट विल बी नॉर्मल एंड सडनली ही फील सीवियर पेन। तो सडन यूजुअली यूनिलेटरल, जो मैंने भी बताया कि नर्व पेन्स यूनिलेटरल होते हैं। सीवियर, खास बात है कि बहुत सीवियर पेन होता है साहब, बहुत सीवियर पेन होता है। ब्रीफ मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए होगा, तो यानी एक बैग आएगा, यूनिलेटरल रहेगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा, थोड़े समय के लिए होगा। स्टैब मतलब क्या होता है, चक्कू, जैसे चक्कू कोई नहीं मारता है, ऐसे काट रहा है, उसी टाइप का पेन होता है। स्टैबिंग और लैंसिनेटिंग, का मतलब एक ही टाइप का। लेंसेट आपने पढ़ा ही होगा, फिजियोलॉजी में आप लोग ब्लड निकालते थे तो मारते तो क्या होगा, टक से ऐसे प्रिक लगेगा, कोई चक्कू मार दे कट से, उसी टाइप का पेन। स्टैबिंग या जैसे कट हो गया, उसी टाइप का पेन। रिकरिंग मीन्स पेन होगा, सही हो जाएगा, फिर होगा। इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर ब्रांचेस ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है ना। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया इज आल्सो नोन एज ए प्रोस्पोल्जिया और फादरगेस डिजीज, is a neuropathic disorder characterized by the episode of intense pain in the face originating from trigeminal nerve। ये आपने देख रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी हो सकता है। ये फर्स्ट ब्रांच यानी व्हाट इज दैट, ऑप्थेल्मिक। सेकेंड ब्रांच व्हाट इज दैट, मैक्सिलरी एरिया में सप्लाई करेगा। थर्ड ब्रांच मैंडिबुलर नर्व है। फर्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच और मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर ब्रांच और मैंडिबुलर नर्व। अब मैक्सिलरी ब्रांच की आपको पता ही होगा, व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस विच वी कम अक्रॉस। इंफ्राऑर्बिटल, मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस में इंफ्राऑर्बिटल हो गया, मिडिल सुपीरियर हो गया, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व हो गया। इसी के नाम पे हम लोग ब्लॉक्स भी देते हैं। इसी तरीके से थर्ड ब्रांच में कौन सी ब्रांच हो गई, कौन सी हो गई, आपका क्या हो गया, आपकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व हो गई जो आपको सप्लाई करेगी, लिंगुअल नर्व हो गई, बहुत सारी नर्व्स हो गई जो इसकी ब्रांचेस को सप्लाई करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब जो पेन होगा इसका किसी नर्व में हो सकता है, इन द सेंस कि इंफ्राऑर्बिटल न्यूराल्जिया हो सकता है, यानी हाई ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, लेकिन पेन किस में हो रहा है, इट इज अलोंग दी पेरिफेरल ब्रांच, यानी इंफ्राऑर्बिटल ब्रांच में हो रहा है। तो इंफ्राऑर्बिटल न्यूराल्जिया टाइप से वो चीज़ हो गई, ठीक है।
इसी तरीके से इंफीरियर वेलर में हो सकता है, इसी तरीके से मेंटल में हो सकता है, मेंटल नर्व ब्रांचेस में हो सकता है, इसी तरीके से PSA या पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर में भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि डिजीज जनरली होता है एक साथ सारे ब्रांचेस में नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच और पूरे ब्रांच में भी नहीं होगा। जैसे मैक्सिलरी नर्व है तो मैक्सिलरी नर्व की पर्टिकुलर ब्रांच में हो जाएगा, इंफ्राऑर्बिटल में हो जाएगा, PSA में हो जाएगा, या मैंडिबुलर नर्व में आएगा तो इंफीरियर एल्वेलर ब्रांच में हो जाएगा, कभी कभी मेंटल में भी होता है, चांसेस कम होते हैं। आई होप इट इज क्लियर बाय नाउ। प्लीज एनी कंफ्यूजन लेट मी नो। इसका एक हमने आपको इनिशियली बताया था कि इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं टिक डोलोरेक्स। टिक डोलोरेक्स मीन्स पेनफुल जर्किंग। जर्क मतलब जर्क क्या होता है, सडनली कोई चीज़ होती है जिसको हम जर्क कहते हैं। इट इज़ टोटली एगोनाइजिंग कंडीशन, मतलब बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। आप इसके मरीज को कभी देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे, मतलब इट्स सच ए पेनफुल कंडीशन। मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे एक पेशेंट ने, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का पेशेंट था, pain was so severe, she was under my medication. Through my medication we almost controlled the disease, but due to certain condition, because of some problem she didn't turn up. उसने मेडिसिन बंद कर दी, उसके बाद फिर से पेन उसको शुरू हुआ और वो पेन फिर मेरे पास आई और फिर मैंने उसको मेडिसिन दिया, लेकिन पेन नहीं कंट्रोल हुआ और उस लेडी ने ट्रेन के सामने जाके सुसाइड कर लिया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पेन का लेवल क्या हो सकता है। समवन इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ पेन, सो पेन इज वेरी सीवियर। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, पेन इज वेरी सीवियर, ठीक है। इट इज ट्रूली एगोनाइजिंग कंडीशन इन विच द पेशेंट में क्लच, मतलब अपना इतना तेज दर्द होता है ना, आपको कभी तेज दर्द होता है, कहीं जा रहे हैं झटके से पैर में दर्द, हाथ में कुछ लग गया तो आप हाथ पकड़ लेते हैं, तो सेम चीज है। May clutch the hand over the face and experience severe lacerating pain associated with the spasmodic contraction of the facial muscle during attack. बहुत सीवियर कंडीशन में मसल्स का कंट्रैक्शन वगैरह भी शुरू हो जाता है। So it is a truly agonizing condition in which the patient may clench the hand over the face and experience severe lancinating pain associated with spasmodic contraction of the facial muscle during attacks. And this is why it is known as a tic डोलोरेक्स, that is a painful jerking. Okay, इटियोलॉजी मैंने बताया था अभी आपको कुछ देर पहले, जनरली इडियोपैथिक होती है। सेम थिंग हियर इज, इट इज यूजुअली इडियोपैथिक। फिर वही सेम चीज, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व। डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व बताया था कि जो नर्व की आउटर लेयर होती है उसको माइलिन शीट की बनी होती है, वो उतर जाती है, उसे बोलते हैं डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होंगे। पेट्रस बोन होती है जहाँ से आपकी ट्राइजेमिनल नर्व पास होती है, तो पेट्रस रिच कंप्रेशन। पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूराल्जिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूराल्जिया भी एक कंडीशन होती है जिसमें कई बार न्यूराल्जिया होता है ट्रॉमा के बाद। ट्रॉमा क्या हुआ, कोई भी ट्रॉमा हुआ, फेशियल इंजरीज हुई, लिफोट्स ट्रॉमा हुआ, मेंडुलर नर्व ब्रांचेस हुई, उसके बाद भी नर्व वगैरह इंजरीज होती हैं, तो उसके बाद भी न्यूराल्जिया होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूराल्जिया, ठीक है ना। इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स, कोई भी ब्रेन ट्यूमर है उसकी वजह से भी जो है कई बार इस तरह की न्यूराल्जिया टाइप की पेन आ सकती है। इंट्राक्रैनियल वैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज हो गया, वायरल इटोलॉजी हो गया, डेंटल लॉस ऑफ टूथ विद डीजनरेशन ऑफ नर्व, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, आपको बुक्स में बहुत जगह नहीं मिलेगी, बट बहुत कंडीशंस ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की प्रिस्पेट होती हैं आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन। तो ये एक इटोलॉजी है जो आपको नहीं होती, बट लॉस ऑफ टीथ विद डीजनरेशन ऑफ नर्व ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी इटोलॉजी होती है जो आपको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बढ़ाया है प्रोग्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया ओवर टाइम। मतलब ये क्या है, ये जो रेड वाला पीरियड है मतलब वो डिजीज का टाइम है, मतलब पेशेंट को पेन हो रहा है, और ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला क्या है, जब पेशेंट रिमिशन का मतलब कि रिलैक्स टाइम है, पेन नहीं हो रहा। आप देखेंगे इनिशियली जब डिजीज आएगी तो पीरियड ऑफ एक्सर्वेशन जो होगा वो बहुत थोड़ा होगा और रिमिशन जो होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन ऐसे जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती आप देख रहे हैं कि ब्लू इज श्रिंकिंग एंड रेड इज टेकिंग ओवर। मतलब जो पीरियड होगा रिमिशन वाला, वो पीरियड जो होगा घटता जाएगा, रिलैक्स टाइम घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और
जनरली रिलैक्स पीरियड नहीं होता। वरना इनिशियली स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को पेन होगा, 2 मिनट 3 मिनट पेन रहा, फिर सही हो गया, फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर पेन होता था। बट अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं होता प्रॉपरली तो क्या होता है कि वो पेन जो है, जो पहले 4-4 दिन पे अटैक पड़ता था, फिर 2-2 दिन में पड़ेगा, फिर 1-1 दिन में आएगा, फिर 1 दिन में 4 बार पड़ेगा, फिर घंटों में आने लगेगा, फिर 1-1 घंटे में पड़ने लगेगा 2-2 बार, फिर 5-5 मिनट में पड़ने लगता। फाइनली कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट का पेन बहुत देर तक बना रहता है, पेशेंट एकदम हो जाता है। और इसमें कई बार होता है कि जब बहुत सीवियर पेन होता है तो आदमी अपनी आइज़ भी ब्लिंक नहीं कर पाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, आई से वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, मतलब टीयर्स निकलने लगते हैं आई से, तो भी एक कंडीशन होती है। ठीक है ना। ये हमने टाइप लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसमें। जनरली आप ये मानिए ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया दैट्स ऑल। तो सबसे पहले आपका आ गया टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। जनरली वही ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जो हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन क्लासिकल इडियोपैथिक एंड एसेंशियल कॉज बाय ब्लड वेसल कंप्रेशन इन द ट्राइजेमिनल नर्व रूट। मीन्स जो हमने पढ़ा है वही चीज़ है ये, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एटिपिकल न्यूराल्जिया, बस आप इसका नाम याद रखिए, इसमें बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया दैट्स ऑल। ठीक है। अब आप आए जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं। इंसिडेंस, एज। इंसिडेंस क्या होता है 1:2 तो आपने पढ़ लिया। एज मतलब थोड़ा सा लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें नर्व डिजनरेशन होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि नर्व जो डिजनरेशन वगैरह होते हैं या नर्व माइलिनेशन डीमाइलिनेशन वगैरह वो ओल्ड एज में होता है। बहुत सारे पेशेंट देखिए जब ओल्ड एज आती है तो बहुत सारी नर्व की बीमारियां होती है, तो उसी से रिलेटेड है। सेक्स में फीमेल में मेल से ज़्यादा, अब इसका बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है। एप्लीकेशन फॉर साइट राइट से लेफ्ट ज़्यादा होता है, बट एग्जैक्टली बहुत कोई क्लियर चीज़ नहीं है। एंड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, V3 V2 V3 मतलब क्या है, ये V नहीं एक्चुअली, सॉरी, फिफ्थ, मतलब V3 मतलब फिफ्थ ब्रांच का थर्ड ब्रांच, यानी ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड ब्रांच यानी मैंडिबुलर। V2 मीन्स मैक्सिलरी एंड मतलब फिफ्थ की 2 एंड ये मतलब ऑप्थैल्मिक। ये एक पॉइंट है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं, ट्रिगर्स जोन्स। ये ट्रिगर जोन क्या होता है? ट्रिगर जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है। ट्रिगर जोन्स क्या होते हैं कि कुछ एरियाज होते हैं ओरल कैविटी में और फेस पे, स्पेशली फेस पे ओरल कैविटी में एरियाज होते हैं जिसको टच करने से, जिसको डिस्टर्ब करने से हो सकता है। जैसे अगर आप एक मेल पेशेंट लीजिए तो शेविंग करने से हो गया, ब्रशिंग करने से पेन शुरू हो सकता है, आदमी ट्रेवलिंग कर रहा, तेज जर्क आया, उससे पेन हो सकता है, ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा से बहुत होता है, पेशेंट बाहर निकला, ठंडी हवा चल रही, ठंडी हवा से शुरू हो गया, किसी वजह से कोई टच हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रिगर जोन्स। तो ट्रिगर जोन जनरली क्या होते हैं, प्री ओरल रीजन में ज़्यादा होते हैं, यानी ओरल कैविटी के आसपास वाले हिस्से में, यानी लिप के पास और या इस वाले हिस्से में। और बहुत देखिए आप मैक्सिमम अगर आप देख रहे होंगे तो ट्रिगर जोन्स ओरल कैविटी के आसी पास वाले हिस्से में यूनिलेटरली इनको दिखाया गया। तो इन हिस्सों को कभी भी टच किया जाता है हो जाता है। ऐसे पेशेंट कई बार शेविंग नहीं करते हैं, क्योंकि शेविंग करेंगे तो पेन आ सकता है। प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं क्योंकि ब्रशिंग करने से पेन आता है। तो ऐसे पेशेंट की अक्सर ओरल हाइजीन भी पुअर आपको देखिए, क्योंकि ब्रशिंग ही नहीं करेंगे। इसी तरीके से लोग जो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जब मैं उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, देखते हैं, तो कहेंगे डॉक्टर साहब ठीक थे, बस आप चढ़े, झटका लगा, बड़ी दर्द शुरू हो गया। तो जर्क से भी कई बार हो जाता है, ठंडी हवा से बहुत शुरू हो जाता है। कई बार पेशेंट आते हैं, आएंगे चेयर पर बैठेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, हम लोग थोड़ा जब प्रॉब्लम बताए, सस्पेक्ट तो हो गया कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, लेकिन जब एग्जामिन करना होता है ना कि हो सकता है कहीं डेंटल ओरिजिन, तो देख रहे हैं तो पता चला हमने देखा, छुआ और ट्रिगर जोन इंडिकेट हो गया, सडनली पेशेंट को सीवियर पेन चालू हो गया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि सडनली इस तरीके से भी कई बार जो है बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट ये भी समझने की ज़रूरत है कि कई बार इससे भी होता है बहुत। तो ये मतलब टच हो गया, प्रेशर, हॉट एयर, कोल्ड एयर विंड से हो गया, ब्रशिंग से हो गया, शेविंग से हो गया, किसी तरीके से वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा, जर्क लगा, मूवमेंट्स की वजह से, तो ये सारी कंडीशन होती हैं जिससे अक्सर प्रॉब्लम इस तरह की आ जाती है। तो प्लीज़ उसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो ट्रिगर जोन्स क्लियर हो गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेनली ट्रिगर जोन इज कंसिडर्ड इन दी ओरल एंड पेरी ओरल रीजन। ठीक है।
अब आते हैं क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक पे, जो मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सडन, यूनिलेटरल, इंटरमिटेंट, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट, किसी चीज़ का मतलब कोई आदमी सही है और सडनली उसको कुछ चीज़ हो जाए। अगर आप देखेंगे अभी, अगर आप गूगल पे जाके प्रॉक्सिमल डालेंगे, मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमल तो आएगा सडन आउटबर्स्ट। तो कोई चीज़ मतलब नॉर्मल है, सडन आउटबर्स्ट, तो ये खास बात होती है। वही चीज़ है सडन, यूनिलेटरल, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मीन्स थोड़ा थोड़ा समय पे। प्रॉक्सिमल सडन आउटबर्स्ट, शार्प, तेज, शूटिंग। शूटिंग मीन्स एकदम ऐसे झन से मारेगा, झन से, जैसे मरीज ऐसे आपको आएगा। अगर हमारे हिंदुस्तान में मतलब हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में या हमारे हिंदी बेल्ट में देखिए तो पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब झन से मारता है, उसको आप शूटिंग कह सकते हैं, शूटिंग टाइप का पेन। लेसिनेटिंग, शॉक लाइक, मतलब सडनली शॉक लग जाएगा। इलिसिटिंग बाई स्लाइट टचिंग, मतलब टच करेंगे पेशेंट एकदम झन से हो जाएगा पेन, एकदम बेअंदाज बेतहासा पेन होता है। मैंने बताया था कि आदमी ने सुसाइड कर लिया था, मीन्स द पेन लेवल इज दैट कम, नो वन यू वांट द लाइफ टू बी टेकन, ठीक है ना। तो सुपरफिशियल ट्रिगर पॉइंट्स अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व विच रेडिएट्स पेन। तो वही ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो मैंने भी आपको बताया, वो रहते हैं। पेन रियरली क्रॉस मिड लाइन, यूजुअली कन्फाइंड टू द वन डिवीजन ऑफ नर्व, ये मैंने बताया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि जनरली ये जो मैंने एक कंडीशन है, पेन रियरली अक्रॉस मिड लाइन। अभी मैंने बताया था कि जैसे जितनी भी नर्व की कंडीशन होती है क्रॉस नहीं करती मिड लाइन, यूजुअली कन्फाइंड टू वन डिवीजन। अटैक डू नॉट अकर्स ड्यूरिंग स्लीप, ये कभी भी सोते वक्त नहीं होता। ये एक बड़ा अच्छा फैक्टर है, जब पेशेंट सो जाता है तो कभी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, विल बी ऑल राइट, ये शी विल बी ऑल राइट, ठीक है। पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट मे रिकर विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, पेन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ सकता है, मतलब पहले हो सकता है 2 घंटा हो रहा, फिर 1 घंटा हो सकता है। ट्रिगर जोन्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यूटेनियस मतलब स्किन में, कॉर्नर ऑफ द लिप, चीक, ऑल ऑफ द नोज, ऑल ऑफ द नोज आप समझ ही रहे होंगे, ऑल ऑफ द नोज, लेटरल ब्रो, इंट्राओरल में टीथ, जिंजावा, टंग। ट्रिगर एरिया ऑन दी फेस आर सो सेंसिटिव दैट टचिंग और इवन एयर करंट्स कैन ट्रिगर एन एपिसोड। मैंने बताया था ना कि हवा से भी हो सकता है, सेम चीज़ है। तो ट्रिगर एरिया क्या क्या हो सकता है, कॉर्नर ऑफ द लिप्स, चीक, ऑल ऑफ द नोज, लेटरल ब्रो, इंट्राओरल। इंट्राओरल में क्या क्या हो गया, टीथ हो गया, जिंजीवा हो गया, टंग हो गया। ट्रिगर एरिया ऑन द फेस आर सो सेंसिटिव दैट टचिंग और इवन एयर करंट्स कैन ट्रिगर एन एपिसोड। इसका मतलब ये हो गया कि जरा सी हवा भी ठंडी, स्पेशली ठंडी हवा से बहुत होता है। इस तरह के पेशेंट जनरली क्या करते हैं कि पूरा चेहरा अपना ढक के रखते हैं कि हवा ही ना लगे, पूरा क्लोज कर लेते हैं ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट देयर आईज, दैट्स ऑल, आई नोज, जो सांस और देखने के छोड़ के पूरा बंद कर देते हैं। कुछ केसेस बायलेटरल भी होते हैं बट बहुत रेयर हैं, आई थिंक 10 to 2% इन्होंने यहाँ पे कोट किया है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, इट्स लेस देन दैट। पेशेंट आके बताएगा डॉक्टर साहब एक तरफ हो रहा है, एक तरफ एकदम ठीक है मेरा, एक तरफ कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बड़ा कॉमन अच्छा पॉइंट है इसमें। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एक्चुअली देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, बट मैं आपको बताऊं टोटल जो डायग्नोसिस की टोटल डायग्नोसिस जो है डिटेल हिस्ट्री पे ही है, बहुत रेयरली, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी डायग्नोसिस जो होती नहीं हो पाती है। एक डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक मैं भी बताऊंगा क्या होता है, इससे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एमआरआई सीटी स्कैन से डायग्नोसिस हो सकती है, बट कहीं ना कहीं अभी दैट इज़ इट्स नॉट आउट प्रीव्यू, मतलब कहीं ना कहीं फिर ये अगर लेवल बढ़ता है, न्यूरो सर्जन के पास जाता है तो वो लोग डील करते हैं उस चीज़ को। एक जनरल और डेंटल सर्जन हम लोग जो लेवल डील करते हैं उसमें हम लोग जनरली हिस्ट्री से ही कर लेते हैं। और एक डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक होता है। डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक क्या होता है कि जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट आया बता रहा कि हमको पेन हो रहा है इन दी मिडिल रीजन में बता रहा है, मिड फेस में बता रहा है, एक साइड में, तो आपको लगेगा यार यहाँ पे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए नाक के बगल वाले, नोज के बगल वाले हिस्से में बता रहा है। पेशेंट इज टेलिंग पेन, सपोज वन पेशेंट रिपोर्टेड टू योर क्लिनिक एंड ही इज टेलिंग पेन इन द मिडिल रीजन, मिडिल इन दी मिड फेस में हो गया, यानी मैक्सिलरी डिवीजन आपको समझ में आएगा। लोअर जबड़े को फेस को 3 हिस्सों में डालते हैं ना, अपर,
मिड एंड लोअर। तो अपर मिड वाला मतलब मैक्सिलरी वाले, जो मिडिल जॉ होता है, मतलब जो अपर जॉ होता है उसको मिड फेस कहते हैं। लोअर जॉ मीन्स अपर जॉ यानी मिड फेस हो गया। लोअर फेस, लोअर थर्ड ऑफ द फेस यानी मैंडिबल, और उसके ऊपर अपर थर्ड जिसको बोलते हैं, यानी वो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो खैर उसमें उतना तो डिजीज होती नहीं है। तो पेशेंट बताया, तो आपको लगेगा सबसे पहले यार ये कहाँ पे हो रहा है पेन, तो आपको लगेगा कि ये चांसेस ज़्यादा हैं इसमें मैक्सिलरी डिवीजन। अब मैक्सिलरी डिवीजन में अगर वो आगे के हिस्से में बता रहा है तो कौन सा हो सकता है? नेचुरली इंफ्राऑर्बिटल। भाई अगर पीछे बताएगा मैक्सिला मिड फेस में पेन बता रहा, पीछे बता रहा तो पीएसए हो गया, पीएसए नर्व में हो गया। आगे बता रहा तो इंफ्राऑर्बिटल हो गया। उसके लिए बोलते हैं डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक। मतलब पेशेंट को पेन हो रहा है, तो पेन क्यों होता है? नर्व इंडी की स्टिमुलेशन से वो पेन हो रहा है, न्यूरोलजिया हो रहा। तो आप क्या करेंगे? वहां पे आप एक एलए आप दे दीजिए। एलए मीन्स लिग्नोक्रिन जो हम लोग यूज करते हैं, 2 ml का लोड करिए और इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक दे दीजिए। इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक अगर पेन से वो दर्द उसका खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि इंफ्राऑर्बिटल वाला न्यूरोलजिया उसको है, यानी रीजन इज कल्प्रिट इज इंफ्राऑर्बिटल नर्व। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा है, तो हम इसका इंपॉर्टेंस क्या डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक का हम आपको आगे बताएंगे कि उससे हम क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपको पकड़ में आएगा भाई डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि जो डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक से आपको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर ब्रांच से हो रहा है, और आपको समझ में आएगा कि पेशेंट को नर्व और इंडिंग में जैसे ही आप देंगे उसका पेन खत्म हो जाएगा, ही विल बी फाइन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट हम आपको बताएं। कई बार क्या होता है, आप जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे या इंटर्नशिप वगैरह में अपनी फाइनल ईयर में, जब भी आप लोग की क्लासेस होपफुली जल्दी ही रिज्यूम होंगे, तो आप जब देखेंगे कि इस तरह के पेशेंट कभी भी आपके क्लिनिक में आपके पास आएंगे, तो पता चला, आप मान लीजिए यहाँ पे 80% पेशेंट तो पेरिफेरी से आते हैं। पेरिफेरी मतलब शहर के नहीं है, बाहर वाले हिस्से में बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कोएक हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप देखेंगे कि पता चला कि एक साइड के सारे दांत ही नहीं, जिधर वो पेन बता रहा है वो एक तरफ दांत ही नहीं। तो वो पूछेगा कि क्या गए तुम्हारे दांत? तो बता डॉक्टर साहब निकाल दिए। तो होता क्या था, पेशेंट गया किसी डॉक्टर के पास, इधर दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, झन झन मार रहा है। तो मरीज को लगेगा यार इस दांत में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को भी कई बार लगता है, जो भी कोएक के नहीं पढ़े हैं, 10 डिग्री बिना किए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब वो कहेगा जाओ इसको निकाल देते हैं। मरीज भी कहते हैं यार इतना दर्द हो रहा है, जान पे बनी, जो लोग दांत निकलवा लेते हैं। तो पता लगा एक लेटरल इंसाइजर निकलवाया, फिर नहीं गया दर्द, अच्छा एक और निकलवा लो, तो सेंट्रल निकलवाया, फिर कैनाइन, फर्स्ट पीरियड, मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन मिलेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर तक दांत निकाल दिए, लेकिन पेन गया ही नहीं, और पेन की इंटेंसिटी बल्कि बढ़ गई। मतलब पेशेंट आपको आएगा, आप देखोगे यार ये तो कोई दांत ही नहीं है, मुझे क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने दांत निकाल दिया, दर्द हो रहा था, हमको लगा, डॉक्टर साहब को लगा इसी वजह से दर्द है। एक्सरे में तो नहीं कुछ दिख रहा था, लेकिन ये पता कई बार एक्सरे होता भी नहीं है, उन्होंने सारे दांत निकाल दिए। तो ये बहुत कंडीशन होती है, डॉक्टर लोग पकड़ के सब दांत निकाल देते हैं। तो प्लीज आप अपनी डायग्नोसिस अच्छी से करिएगा। दैट इज वाई डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द डायग्नोसिस। कई बार एज ए डेंटल स्टूडेंट्स हमने देखा है कि लोग डायग्नोसिस पे फोकस ही नहीं करते हैं, कोई एमआर की पोस्टिंग ही नहीं करना चाहता है, कोई ओरल मेडिसिन एंड डायग्नोसिस को बहुत ही लाइटली लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओरल मेडिसिन डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये टोटल डायग्नोसिस ही का तो गेम है। मतलब उसके 5 दांत उन्होंने निकाल दिए, फायदा उनको 1 पैसे का नहीं मरीज को मिला। और कई बार क्या होता है कि उखाड़ने से पेन बढ़ ही जाता है, क्योंकि नर्व एंडिंग वगैरह कुछ डैमेज होने की वजह से पता चला न्यूरोलजिया बढ़ गया। तो ये चीज़ हो गई। तो डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक समझ में आ गया ना, तो उससे आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट आप देख सकते हैं किस पर्टिकुलर नर्व की वजह से है। तो आपका पहला कंफर्म हो जाए कि भाई ये न्यूरोलजिया, क्योंकि एलए देते ही नर्व पेन चला गया। और दूसरा फिर उस ट्रीटमेंट भी उसका एक बहुत मेजर रोल हो सकता है। एक वाइट एंड स्वीट थे जिन्होंने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया था, मेजर क्राइटेरिया। प्रॉक्सिमल पेन मतलब पेन जो होगा सडन आउटबर्स्ट होगा, ट्रिगर जोन्स होंगे। अगर आपको डायग्नोसिस बनानी है, जैसे हर चीज की एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, कोई भी डिजीज है अगर आप पढ़ेंगे तो हर का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। तो एक क्राइटेरिया दिया था वाइट एंड स्वीट ने, क्या क्या था? पेन शुड बी प्रॉक्सिमल मीन सडन आउटबर्स्ट होना चाहिए, पेन का ट्रिगर जोन होना चाहिए, पेन कन्फाइंड टू नर्व ब्रांचेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेन आपको कन्फाइंड टू वन ब्रांचेस होगा, इसीलिए पेन कभी मिड लाइन नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि जनरली ब्रांचेस मिड लाइन क्रॉस नहीं करती हैं एक्सेप्ट एट फ्यू कंडीशन। यूनिलेटरल एंड क्लिनिकल सेंसरी एग्जामिनेशन नॉर्मल। और आप जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, यानी उसकी टच सेंसेशन वगैरह नहीं गए होंगे। समझ रहे हैं बात? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना?
तो वाइट एंड शीट क्राइटेरिया समझ में आ गया आपको। तो प्रॉक्सिमल पेन होना चाहिए, ट्रिगर जोन्स होना चाहिए, पेन कन्फाइंड टू नर्व ब्रांचेस होना चाहिए, यूनिलेटरल एंड क्लिनिकल सेंसरी एग्जामिनेशन शुड बी नॉर्मल। अब एक्चुअली कई बार क्या होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे कि कोई भी कंडीशन होती है जिससे मतलब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। माइग्रेन, ठीक है, माइग्रेन का भी यही प्रॉब्लम होती है। सीवियर टाइप ऑफ पीरियोडिक हेडेक इज परसिस्टेंट एट लीस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ आवर्स एंड इट हैज नो ट्रिगर जोन। तो माइग्रेन होगा तो उसका क्या पॉइंट है, उसमें कोई ट्रिगर जोन नहीं होगा, घंटों तक रहता है और हेडेक होता है, मतलब सर में होता है, जैसे जिसको बोलते हैं कपारी। और इसमें कई बार आंख के सामने ब्लैकआउट भी होता है, विद ऑरा विदाउट ऑरा माइग्रेन होता है। तो ये फर्क इसमें क्या होता है कि घंटों पर होता है, उसमें कोई ट्रिगर जोन नहीं होता सॉरी। उसके बाद साइनोसाइटिस का पेन तो आप लोग सारे लोग ही जानते हैं। साइनोसाइटिस मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बहुत कॉमन होता है। क्या होता है, पेन इज नॉट प्रॉक्सिमल, सडन आउटबर्स्ट कभी नहीं होगा, इट इज अ क्रोनिक कंडीशन। इन दिस पेन इज परसिस्टेंट एसोसिएटेड विद नेजल सिम्टम। नेजल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को थोड़ा सा छींक आएगी, स्नीजिंग सिम्टम रहेंगे, हल्का फुल्का कोल्ड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि साइनोसाइटिस में होती है, बट ये पॉइंट कभी भी न्यूरोलॉजिया में, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में नहीं रहेगा। डेंटल पेन आ गया। डेंटल पेन तो आप पहचान ही सकते हो, डेंटल पेन में क्या रहेगा, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंटल पेन एंड ट्राइजेमिनल नर्व पेन को डिस्टिंग्विश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार अभी भी इतना एक्सपीरियंस के बाद हम लोग गलत हो जाते हैं। कई बार न्यूरोलॉजिया का पेन को डेंटल समझ के उसकी आरसीटी कर देते हैं, वाइस वर्सा। तो लोकलाइज रिलेटेड टू बाइटिंग और हॉट और कोल्ड फूड्स, विजिबल एबनॉर्मलिटीज ऑन ओरल एग्जामिनेशन। एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या है भी, आपको दिखेगा कि पेशेंट को पेन हो रहा है तो एक्सरे करेंगे तो उसमें कैरीज दिखेगा, वर्टिकल फ्रैक्चर दिख सकता है, पेरिपेकल चेंजेस दिख सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। ये सारी चीजें आपको डेंटल पेन में दिखेंगी। न्यूरोलॉजिकल पेन में दांत एकदम क्लियर रहेगा। तो ये हो गया। ट्यूमर ऑफ न्यूज़ोफैरिंक्स हो सकता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेन इज यूजुअली इन्वॉल्व इन ऑप्थेल्मिक डिवीजन, द हिस्ट्री ऑफ स्किन लीजन प्रायर to onset of neuralgia, pain is persistent associated with nasal symptom। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया, पेन इज यूजुअली इन्वॉल्व इन ऑप्थेल्मिक डिवीजन, द हिस्ट्री ऑफ स्किन लीजन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ न्यूरोलजिया, पेन इज परसिस्टेंट एसोसिएटेड विद नेजल सिम्टम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो होगा ऑप्थेल्मिक डिवीजन में होगा हिस्ट्री ऑफ स्किन लीजन। स्किन लीजन मैंने आपको बताया था ना कि जब अल्सर होता है, मतलब सॉरी ये न्यूरोलजिया की कंडीशन डेवलप होती है, तो पेशेंट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किन लीजन्स, लाइक यू विल हैव ओरल अल्सर्स, फेस पे आपको स्पॉट्स दिखेंगे, यू लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स टाइप ऑफ थिंग्स, वेसिकल्स टाइप ऑफ थिंग्स विल बी देयर। तो वही बोल रहे हैं कि जनरली फीवर की हिस्ट्री रहेगी, यहाँ पे इन्होंने नहीं मेंशन किया है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो जो कि न्यूरोलजिया में आपको नहीं रहेंगी। नॉर्मल ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ये पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया है। अब इसका ट्रीटमेंट पार्ट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम कुछ एक छोटा नेक्स्ट टाइम एक छोटा लेक्चर डालेंगे इसी पीरियड में हम, और आपको उसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और डिटेल में बताएंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बाय।